Welcome students. This is the lecture of marketing of services, and in this we will be discussing about the distribution. This is just an introduction lecture. So this is all about the syllabus of marketing of services. The unit 1 and unit 2 has been covered by Gaurav sir. So I will be taking care of unit 3 and unit 4. So in unit 3, we will be discussing about distribution services, how it is different from product services, and we will be talking about distribution, but particularly in the service context, how distribution is planned in case of services, what are the different options for service delivery, what are the key intermediaries involved, and what is the role of intermediary in service delivery, and what could be the effective strategies for service delivery. Now, the unit 4 is about market research, how market research is done in case of services, what are the steps of marketing research, how we can plan it for marketing of services. Then we will be talking about internal marketing and relationship marketing, which is a part of holistic marketing. So first of all, when we are talking about distribution in service context, there should be 4 questions that arises in our mind. That first one is what is being distributed? क्या distribute होगा? Then how it is being distributed? कैसे distribute होगा? Where? कहाँ होगा? When? कब होगा? So when you are able to give responses to these 4 questions, it forms the foundation of any service distribution strategy. They determine the customer's service experience, which is a function of how different elements are distributed and delivered through physical and electronic channels. This we are going to study in the coming lectures. Then we will be discussing about what determines what exactly the service distribution is and what determines the exact will flow through the distribution. Kya distribute hoga? This we will be discussing in the next slide. And the distribution strategy needed to cover each of these flows so that these questions how, where, when can be solved. So first of all, distribution, or you can say place in simpler terms, अगर आप समझे तो distribution is place, कहाँ हमें वो distribute करना है so that it will be easily available to the customer. So distribution or place is one of the 4 elements of marketing mix. A marketing mix हमारे 4 P's: product, price, place, promotion. But when we talk about services, तो ये instead of 4 P's it becomes 7 P's. ये 7 P हो जाते हैं. ठीक है, इसमें people, process और physical evidence add हो जाता है. तो in the similar way हमारा जो distribution है, it plays an important role in 4 P. ठीक है. So distribution channel, अब distribution channel है क्या? It consists set of people or firms who are intrinsically involved in the transfer of goods or services from producer to the end user. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Distribution channel, कोई भी company is not directly selling, or if they are selling, that is very few companies who are directly dealing with the customers. If the product is very have a vast range of product lines or number of products are there, so they are not dealing with directly to the end user. So there are a number of intermediaries involved in between. वो कंपनी से पहले होलसेलर पे आएगा, then wholesaler to retailer, then to small that galla kirana stores, retailers, then it finally reaches to the end users. So distribution channel में एक set of people हैं, एक set of firms हैं who are involved in transferring of goods or services from the producer. Producer is the company, end user is the customer. So end user हमारा individual भी हो सकता है, industrial customer भी हो सकता है. 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं हमारे. एक तो जो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट, जैसे कि हमने कोई चीज खरीदी तो वी आर यूजिंग इट, वी आर कंज्यूमिंग इट. बट देयर आर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की, मान लो उन्होंने कोई कार बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी से खरीदा. सो दिस विल कम एज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर. They are purchasing the product and they are transforming into a different product or service.
ठीक है. सो एंड यूजर कैन बी द इंडिविजुअल कंज्यूमर और द इंडस्ट्रियल consumer. So channel of distribution includes the producer of the goods of services, the consumer of the same, and a series of intermediaries that I was talking about. Series of intermediaries कौन होगा? Wholesaler, dealer, retailer, agent, etc. So कोई भी product हमारा जहां से बना है means the place it is being produced till the place it is consumed. So the place of produced and place of consumed can't be same. जरूरी नहीं है कि दोनों जहां चीजें प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे वो इस कंज्यूम भी हो रही है. सो देर इज अ टाइम लैग बिटवीन देम. जब प्रोड्यूस हो रही है और कब कंज्यूम हो रही है दोनों के बीच में एक टाइम लैग होगा. ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही बना वैसे ही उसको कंज्यूम कर लिया गया. सो देर इज अ टाइम लैग बिटवीन दीज टू. ठीक है. सो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे कंज्यूम होना है इन दोनों के बीच के गैप को कम करना है. दैट विल बी डन थ्रू द इंटरमीडिएरीज. सो इंटरमीडिएरीज विल कम इनटू रोल हियर. ठीक है. वो क्या करेंगे? जो भी आपका प्रोडक्ट है वेदर इट इज अ गुड्स और सर्विस दे विल ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट लेवल. मान लो होलसेल कंपनी से होलसेलर ने उठाया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने जो लोकल रिटेलर्स थे उनको दिया था, लोकल रिटेलर्स contacted the consumers. ठीक है. अब place this I was discussing, we will be discussing in this unit about distribution. Distribution को अगर common layman language में समझे तो जगह जहां हमें वो goods और service consume करनी है. So place in case of services determine where the service product going to locate. जहां हमारा service जो है वो locate होगी. ठीक है. मान लो अब examples से we try to understand it. Like best place to open a petrol pump is on the highway or in the city. A place where there is a minimum traffic is wrong location to start a petrol pump. अब आपको एक पेट्रोल पंप खरीदना है, that is a kind of service only. तो अब पेट्रोल पंप ऐसी जगह पे खोलोगे वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, जहां लोगों का आना जाना है, दे आर कम्युनिकेटिंग. ठीक है. मतलब आप कम्यूटिंग कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी जगह. आपने ऐसी जगह पेट्रोल पंप खरीद लिया जहां जंगल में, तो हु विल कम देयर? नोबडी विल कम देयर, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड द लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. ऐसे नहीं रैंडमली कहीं पर भी खोल दोगे. सो बेस्ट प्लेस अगर हम बात करें ओपन करने की पेट्रोल पंप की, दैट इट इज इन द हाईवे. बिकॉज हाईवे में और या सिटी जो भी बात करें तो जो हमारी बेस्ट लोकेशन है तो वो ऐसी होनी चाहिए जहां पे वो सर्विस लोगों को एक्सेसिबल हो. ठीक है. और जहां पे आपके कस्टमर्स आए. अ प्लेस वेयर इज मिनिमम ट्रैफिक इज द रॉन्ग लोकेशन. ओके. Then similarly, when we are talking about the software company, so software company will be better placed in a business hub with lots of companies nearby rather than being in a place in a town or a rural area. Now, अब जितनी भी IT company है, they are located in Bangalore. Why? There could be certain reasons. ठीक है. क्या रीजन है? बहुत सारी कंपनी जो है हमारी वो क्या है इस उस एरिया में एक एजुकेशनल हब बन गया है. तो हमारे को जो रिसोर्सेज है, मान लो मैंने अपनी कोई एक कंपनी खोली. ठीक है. किस सॉफ्टवेयर की है, कोई MIS का सोल्यूशन वो निकाला है, इंफॉर्मेशन सिस्टम निकाला मैंने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की मैंने कंपनी खोली. बट उसको खरीदेगा कौन? उसमें एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे? सो दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. हम कोई भी कंपनी को खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, हमें लेबर इजीली मिल जाए, हमें जो एम्प्लॉयज हैं वो इजीली मिल जाए, हमें कंज्यूमर्स इजीली मिल जाए. तो इन द सिमिलर वे जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो भी ऐसी जगह में प्लेस करने में फायदा है जहाँ पर एक हब हो, जैसे कि बैंगलोर है, दिल्ली NCR है. अगर हम उसको यहाँ पिथौरागढ़ में खोल दें तो इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर us to establish that, or it will take a lot of time also. तो नाउ व्हाट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है. अभी हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारे पास वी कैन सी फिजिकली थिंग्स कि मैंने कोई बॉटल परचेज किया, मैंने मोबाइल फोन परचेज किया है, मैंने बुक परचेज किया. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज में क्या खरीदेंगे? जस्ट थिंक फॉर 1-2-3 सेकेंड. जस्ट थिंक क्या खरीदते हैं सर्विसेज में? एक्सपीरियंसेस, परफॉर्मेंस एंड सोल्यूशंस.
ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपको एक एक्सपीरियंस हुआ है, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट था, उसमें डांसिंग हुई है, सिंगिंग थी, तो दीज आर कॉल्ड परफॉर्मेंस सर्विसेज है ये। ठीक है, दीज आर नॉट शिप्ड, स्टोर, इसको स्टोर नहीं करके रख सकते हो आप। ठीक है, ये एक्सपीरियंस को आप शेयर शेयर कर सकते हो, ऐसे शिप नहीं होगा एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको हम अगर बात करें तो फिजिकली इसको शिप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट द सेल्स साइकिल इन 3 वेज। अब कैसे, इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशनल फ्लो, ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशनल फ्लो ऑफ मटेरियल्स रिलेटेड टू द सर्विस ऑफर। अब इसमें क्या होता है, मेन इंफॉर्मेशन प्रमोशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो हेयर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द कस्टमर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ सर्विस। जो सेल्स साइकिल होगी उसको 3 तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, बोला हमने। तो जब हमने प्रोडक्ट की बात की थी तो हमने सबसे बोला, सबसे पहले द मेन एम वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट। तो यहाँ भी सेम चीज अप्लाई होगी। whenever a person is not aware about your service, how can it will be interested in purchasing that? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशनल फ्लो। सेकेंड वन इज नेगोशिएशन flow. So negotiation flow means reaching an agreement on the service features and configuration and the terms of the offer so that the purchase contract can be closed. ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने इंफॉर्मेशन फ्लो कर दी है, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट इज टू सेल द राइट टू यूज द सर्विस। हमने यहाँ पे क्या था, पहले वाले में था इंटरेस्ट क्रिएट करना, अब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। नाउ इज टू सेल द राइट टू यूज अ सर्विस। एक राइट हमने उसको सेल करना है, जैसे टू सेल अ रिजर्वेशन और अ टिकट। ठीक है, दिस इज यहाँ पे हमारा एक्चुअल सेलिंग हो रही है। देन इज प्रोडक्ट फ्लो, सर्विसेज लाइक पीपल, पोजेशन, प्रोसेसिंग रिक्वायर अ फिजिकल फैसिलिटी फॉर अ सर्विस डिलीवरी। अब ऐसा तो नहीं है कि सर्विस डिलीवरी हमारी हमें दिखे कि नहीं, सर्विस डिलीवरी होते हुए तो हम देख सकते हैं। लाइक हेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ लोकल साइट्स। मतलब किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट तो एग्जिट करता है, अब वाले यहाँ आपका एक्सपीरियंस, वो सर्विस है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं कि खाना दे रहे हैं और आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए फिजिकली एक फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम बैंकिंग की बात कर लें, ठीक है, तो बैंक एग्जिस्ट करता है तभी तो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने क्या कहा, व्हाट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। हमने बात की थी 4 कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी क्लैरिटी आ गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।